Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My friend, in this video we solved question number 15 and 16 and today we close the chapter that is polynomial. Okay, so here question number 15 says give possible expression for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given. First of all, we see what is rectangle. Rectangle. If you draw the figure of the rectangle is okay. If A, B, C and D is rectangle, and we know that opposite side of the rectangle are equal. That is AB is equal to CD. And also you can write AB parallel to CD. Okay, in the same way we can write BC equal to AD and BC parallel to what? AD. Okay, and each angle of a rectangle or right angle, that means all are right angle. That means angle A equal to angle B, angle C, angle D equal to 90 degree. Okay, and area of a rectangle is area of rectangle length into breadth. Okay, length into breadth. अब if you take AB equal to L and BC equal to B, L and here B, so area equal to L into B. Area of a rectangle is L into B. This is the basic information about rectangle. Okay, and now we are going to question. Area given in quadratic form. That means here we factorize this square equation into two parts. That means here if you write first, we clear that. Okay, everything is clear in that. Okay, now area of a rectangle is length into breadth. Now since, or you can write here, we know that area of a rectangle is equal to the multiplication of
multiplication of its length and breadth. Okay, that is area equal to length into breadth. Okay, since area equal to given 25 a square minus 35 a प्लस 12, आपके क्वेश्चन में ये दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। अब मेन काम हमें करना क्या है कि इसको करना है फैक्टराइज, और फैक्टराइज जैसे ही करेंगे दो पार्ट आएंगे इसके, उसी में आप जिसको चाहिए लेंथ बोल दीजिए। देखिए लेंथ उसी को बोलते हैं ना कि जो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो बड़े वाले को जनरली लेंथ ही लिखते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम ये फिगर ड्रा किए हैं, मान लीजिए इस तरीके से, हमने इसको क्या बोला है, ये है लेंथ, ये है ब्रेथ। अगर हम इसको उल्टा ऐसे ही कर दें तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ये भी रेक्टेंगल ही है, ठीक है। जनरली हम लोग लिखते हैं कि L इज़ ग्रेटर देन B, ठीक है। तो इसी तरीके से अब इसका करना है फैक्टर। अब फैक्टर कैसे होगा, फैक्टर के लिए अब देखिए कोई भी इक्वेशन अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले उसकी डिग्री चेक करिए आप। इसकी डिग्री क्या है, मैक्सिमम क्या है 2, यानी इसके 2 फैक्टर होंगे, 2 है तो इसके 2 फैक्टर आएंगे, ठीक है। अब क्या आएंगे उसको देखते हैं। वैसे अगर जनरली देखा जाए फैक्टर तो इसके 4 होते हैं कोई भी, क्योंकि एक ये खुद होता है और एक होता है, तो वो हमें नहीं देखना है यहाँ पर। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या किया जाता है, देखिए आपको पता ही है कि पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 300। अब इसको करिए फैक्टराइज, 300 आएगा, फैक्टराइज करिए, 2 से करेंगे तो 150, अगेन 2, 75, 3, 25 and now 5, 5, 5, 1. So first of all here if we multiply 12 into 25, so we get plus 300, and in middle term, that is the splitting term, we also told you in previous classes, splitting of middle term, factorization with the help of splitting of middle term, here we use, okay. Now plus, so if you want to write here minus, so both the roots are in minus, okay, because if you add we get minus, if you multiply we get a plus, okay, both root are negative. Now अब हमें यहाँ पर लाना है क्या 35। अब 35 आएगा कैसे, देखिए अगर हम इसको ऐसे लिख दे तो जैसे 2 into 4 into 5 यानी 20 and 15. If you add both we have minus 35, and if you multiply it with each other so we get plus 300. So minus 20 and minus 15 is the splitting of middle term. We can write here 25 a square minus 20 a minus 15 a plus 12. Any problem? This is rough work, not in your answer given, okay. So first we erase ही, देखिए ये सब रफ वर्क होते हैं, आपको इसको रफ पे ही करना रहता है। अब जब आप इतना इसको लिख लिए हैं,
ये कैलकुलेशन तो आप आसानी से कर लेंगे। कैसे? यहाँ से देखिए कॉमन क्या ले रहा है, मिल रहा है क्या, 5a। इफ यू टेक कॉमन 5a, what will be left here? So 5a again minus 4, and here if we take common as 3, so 5a minus 4, again we take common here 5a minus 4, and here 5a minus 3. In both factor, which is smaller and which is greater? That means here 5a same 5a minus 3 minus 4, so greater is 5a minus 3 and 5a minus 4. ठीक है, so I think you can't see here, so I write it here, okay, equal to 5a minus 3 and 5a minus 4. ये बात समझ में आ गई। अब देखिए हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, अब फैक्टराइज कर दिया तो इसमें लेंथ क्या है, यही है, क्योंकि ये बड़ा है, और ये क्या है, ब्रेथ। ठीक है, तो यही इसमें निकालना था कि देयर एरियाज आर गिवन, सो लेंथ एंड ब्रेथ निकालना था, तो हमने निकाल दिया। लेंथ इक्वल टू ये है, ब्रेथ इक्वल टू ये। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन इसी तरीके से किया जाता है। हमने इसको प्रीवियस क्लास में भी आपको बहुत अच्छे से बताया है कि स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, हाउ टू फैक्टराइज अ गिवन क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका था। ठीक है, ये आपका 15 हो गया। ठीक है, अब इसी में 15 का सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट क्या है उसको देख लीजिए आप। अब ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, सीधे आपको एरिया जो दिया हुआ है उसको दिखाता हूँ। देखिए ये सब ऐसे हैं, जैसे आप फैक्टराइजेशन एक बार सीख जाएंगे तो बहुत आसानी से इसको टेकल कर लेगा। ठीक है, इफ़ यू लर्न वन टाइम फैक्टराइजेशन very carefully, so you can solve question easily, okay, otherwise you face difficulty. Now here second part is second is 35y square and plus 13y minus 12, ये आपका दिया हुआ है और इसमें हमें लेंथ एंड ब्रेथ निकालने हैं। ठीक है, किसी रेक्टेंगल का, तो कैसे निकालेंगे आप, सेम वही काम। हियर वी फैक्टराइज दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। ठीक है, और ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है, अब आ जाइए, पहले इनका क्या किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आएगा ये, फोर 20। अब मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, यहाँ पर निगेटिव के साथ आ रहा है, ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए, इसको फैक्टराइजेशन करिए। 2 1 0 0 5 3 5 7 एंड 7 1। ठीक है, अब देखिए इसको ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करें। देखिए अगर 2 × 2 4 × 7 दैट इज 28 एंड नाउ हियर 15। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में निगेटिव लाना है, लेकिन मिडिल टर्म में पॉजिटिव लाना है। अब जब पॉजिटिव लाना है तो पॉजिटिव बड़ा होगा, तो इन दोनों फैक्टर में बड़ा कौन सा है, 28, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस।
इतना आप सेट कर लीजिए तो उसके आगे तो फैक्टर आप वैसे ही निकाल सकते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आ जाइए सीधा देखिए, 35y² प्लस 28y माइनस 15y-12। इसमें कोई परिवर्तन हुआ है क्या, एक बार आप चेक कर लीजिए। अगर आप +28 किए हैं और -15 सॉरी +28y है और -15y है, तो सॉल्व करेंगे तो +13 बच ही जाएगा। अब इसकी आवश्यकता नहीं है, ये रफ वर्क है, ठीक है। देखिए अब इसको फैक्टर कर लीजिए, यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, 7y। इसके आगे क्या हो जाएगा, अब देखिए ये हो गया है आपका, यहाँ से अगर 7y कॉमन लेंगे तो ये क्या मिलेगा, अब यहाँ से -3 5y + 12। okay, now if we take common as 5y + 4, so here we have 7y - 3। ओके, इसमें कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी कौन सी कम होगी बताइए, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, तो इसी को ले लेते हैं लेंथ, ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने लिख करके भी आपको दिखाया है, ठीक है, कि कैसे लिखा जाएगा, और ये है इसका सेकंड पार्ट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। अब इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है उसको पहले देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को लिख दें, इसमें थोड़ा सा हम करेक्शन कर देते हैं, कुछ इसी में से काम आ जाएगा। चलिए, तो आप इसको ऐसे ही लगा लेंगे, ठीक। ये 16 हो गया पहले, तो क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप व्हाट आर द, क्या है, इसको और पीछे कर देते हैं। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द, फॉर द, ये नहीं है यहाँ पर, डायमेंशन, डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड, ये सब नहीं आएगा इसमें, क्यूबॉइड whose volumes are given below। तो इसमें पहला दिया हुआ है वॉल्यूम, क्या है ये, 3x² - 12x, यह दिया हुआ है। अब सबसे पहली बात यह है कि क्यूबॉइड होता क्या है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम क्या होता है ये हमें देखना है। अब देखिए जैसे ये क्या है, देखिए क्यूबॉइड का हम फिगर बनाते हैं,
first we draw the figure of cuboid. Okay, now okay, if this is L and this is B and H. H is height, length, breadth and height. ओके, तो वॉल्यूम क्या होता है इसका? वॉल्यूम इक्वल टू LBH होता है, ठीक है। ये लेंथ होता है, ये ब्रीथ होता है और ये हाइट, मतलब उसकी ऊंचाई। अब इसका सबसे अच्छा अगर एग्जाम्पल देखना चाहे कि एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइड इज माचिस, ओके, एंड you can assume that book कैसा होता है आप भी जानते हैं। अगर एक साइड से देखा जाएगा तो यही होगा, जैसे ये है, एक साइड से देखेंगे तो ऐसे ही तो होता है बुक। ऐसे ही तो होता है, ये पेजेस होते हैं इसके, तो उसकी लंबाई होती है, उसमें चौड़ाई होती है और उसमें ऊंचाई होती है, ठीक है। तो जो क्यूबॉइड होता है उसका फिगर ये होता है और वॉल्यूम के उसका फार्मूला होता है ये, ठीक है। तो इसमें 3 टर्म आएंगे LBH। तो ये कह रहा है कि LBH निकालने हैं, ठीक है। तो क्या आएगा उसको देखिए। अब ये तो समझ में आ गया वो फिगर के अकॉर्डिंग। देखिए फिगर को यहाँ रहने देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। थोड़ा साइड में लिखते हैं, ठीक है। L B एंड H। नाउ देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड is L into B into H according to figure, okay। so आपको दिया क्या है, 3x² माइनस 12x। यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 3x कॉमन ले लीजिए, ये क्या आ जाएगा, x माइनस 4, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स इंटू ये ब्रैकेट में है -4। तो ये क्या है आपका L, ये क्या हो गया B और ये क्या हो गया H। बात समझ में आ रही है? देखिए क्लियर है आपको? So one possible answer is given by one possible answer is given by L equal to 3, B equal to x and H equal to x minus 4। ये उसका उत्तर हो गया। अब देखिए ये दिया हुआ है, इसको हमें 3 में ब्रेक करना था
और LBH के रूप में लिखना था, और यही इसका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है? देखिए, तो ये तो 16 का फर्स्ट पार्ट था, इसका भी सेकंड पार्ट है क्यूबाइड में ही, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए, ये तो हो गया, मान लीजिए अगर क्यूब होता तो क्या होता। चलिए इसको हम मिटाते हैं। देखिए, अंतर समझिए। पहली बात, ये है क्यूब और ये है क्यूबाइड। इसका फिगर होता है स्क्वायर, होता है जैसे स्क्वायर, इस तरीके से, और इसका फिगर होता है, थोड़ा सा बड़ा रख दीजिए बस, ये हो गया आपका क्यूबाइड, ठीक है। अब इसकी सभी भुजा बराबर होती है, जैसे ए अगर ले लीजिए, ये भी ए होगा, ये भी, हाँ, इसके सभी डिफरेंट होंगे, ये एल हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यू, और इसका वॉल्यूम होगा एल बी एच, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो ये क्यूब है और वो क्यूबाइड है, फिगर के अकॉर्डिंग भी देख लीजिए और इसके वॉल्यूम के फार्मूले देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 16 था, फर्स्ट पार्ट वो क्यूबाइड पे था और सेकंड पार्ट भी क्यूबाइड पे है, ठीक है। तो ये तो बेसिक था। चलिए सेकंड पार्ट चलते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज व्हाट इज 12KY स्क्वायर, 12KY स्क्वायर प्लस 8KY माइनस 20K, ठीक है। तो कुल मिलाकर के करना क्या है कि इसका फैक्टर निकालना है, और फैक्टर निकाल करके उसमें LBS दिखाना है। तो आ जाइए इसका फैक्टर करते हैं। तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है एंड K दिख रहा है। सो हियर वी हैव 3Y स्क्वायर प्लस 2Y माइनस 5, ये हो गया। अब इसका फैक्टर करना है, ये तो 4K रह गया, ठीक है। इसका फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए 3 इंटू 5 करेंगे तो 15, 15 के फैक्टर क्या होंगे, 3 होंगे एंड 5 होंगे। माइनस लाना है, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, बीच में लाना है प्लस, प्लस को बड़ा कर दीजिए, छोटे को माइनस। सो यू कैन राइट हियर 3Y स्क्वायर प्लस 5Y माइनस 3Y माइनस 5, ठीक है। ये तो रफ वर्क है। नाउ यू कैन फैक्टराइज। First we take 4K, and in this if we take common as y, so 3y plus 5, and here if we take common minus 1, 3y plus 5, again common as 3y plus 5, and second is y minus 1, okay। आ गया। यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा आपका L, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H, ठीक है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यू कैन राइट हियर 1 possible, 1
possible way is given by L equal to 4k, B equal to 3y plus 5 and H equal to y minus 1. Okay, this is the solution of question number 16. And now if you see, this is the last question. आपका अंतिम क्वेश्चन यही था। तो इस तरीके से आपका जो पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपके जो चैप्टर नंबर 2 था, चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स, टुडे द एंड, आज आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। ठीक है, इसके पहले छोटे छोटे वीडियो कई मिले हैं आपको, पहले ये आपको मिल जाएंगे, फिर उसके बाद लास्ट में एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट नाम से एक वीडियो अपलोड करूँगा, जो कि थोड़ा लॉन्ग तो होगा है, क्योंकि देखिए हमने हर क्वेश्चन का हर पार्ट सॉल्व किया है, तो लॉन्ग तो होगा ही, कोई बात नहीं, जितना लॉन्ग होगा देखा जाएगा। ठीक है, आपको इकट्ठा एक जगह भी मिल जाएगा और आप उस तरीके से देख सकते हैं। सो हियर टुडे वी कंप्लीट चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स। ओके, so I hope you got everything about this chapter, and if you have any difficulty in this chapter, so you can ask in comment box. So thank you very much and thanks for watching. Jai Hind.